हाय, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर सेशन। तो सैम्पलिंग जो कि आज का टॉपिक चल ही रहा है, तो हमने सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा, हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, हमने इसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा। अब जो उसके बाद उसको डिस्कस करने से पहले कि सैम्पलिंग किस किस तरीके से होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सैम्पलिंग एरर्स भी होते हैं और नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी होते हैं, विच मीन्स दैट व्हेन यू पिक अप अ सैम्पल यू ऑल्सो कमिट सम काइंड्स ऑफ एरर्स। आप कुछ गलतियाँ भी करते हैं जब आप सैम्पल चूज़ करते हैं। तो उन एरर्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अगर तो जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से हो रही हैं कि आपका जो सैम्पल चूज़ किया गया है वो इनएडिक्वेट साइज़ का है। तो पिछली ही वीडियो जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एक एसेंशियल ये भी है कि द साइज ऑफ द सैम्पल शुड बी एडिक्वेट, देन ओनली इट रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट सैम्पल। सो अगर वो इनएडिक्वेट साइज़ है तो उसकी वजह से जो आपके इन्फ्रेंसेस हैं वो गलत आएंगे, जो आपके रिजल्ट्स हैं वो बायस्ड आएंगे, या वी कैन से दैट इट इज़ नॉट रिलायबल। सो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन इतना है और उसमें आपने सैम्पल इतना चूज़ किया है तो उसका सैम्पल साइज़ बढ़ा दें। सो द एरर्स और द मिस्टेक्स which are occurring, which are leading to wrong results only due to the inadequate size of the sample, that can be corrected by increasing the size of the sample. So these errors are called as sampling errors. However, if the errors are not due to the size of the sample but because of any other reason, then it is called as non-sampling error. Non-sampling error can be due to various reasons, but I'll discuss few. For example, I told you that for collecting the data, the first thing that you have to do is preparing a questionnaire. Now, if you've prepared a questionnaire but it is not relating or it is not including the perfect questions which you require according to your objectives of the study, then there is a defect or an error due to your questionnaire. So there are questionnaire errors. Now, even if you have given the questionnaire and there is no error in your questionnaire, there are possibilities, there might be chances that the errors occur due to the respondent's side, because maybe that they have not understood what you're trying to communicate. So there can be a communication barrier between a respondent and an enumerator. So if the enumerator is unable to explain what he expresses to, what he wishes to inquire, then also the errors can be occurred. Or if I am sending as an investigator to you to fulfill my details, or I mean to fulfill your details or my objectives, then also there are errors can be errors are possible. Why? Because you might not be able to understand what I require. Then let's say that you have understood what you have understood from the questionnaire and you have written down whatever you wanted to write, but there can be various other errors. The errors can be that when I've chosen the sample, there can be a possibility that the sample chosen is incorrect. जो मुझे चाहिए था वो चूज़ हुआ ही नहीं, सो मेरे जो रिजल्ट्स आएंगे ऑटोमेटिकली वो ठीक नहीं आएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट व्हेन वी हैव कलेक्टेड दैट डेटा एंड वी आर एक्चुअली एनालाइजिंग द डेटा, सो वी आर चूजिंग द रॉन्ग मेथड। हमें यूज़ करना चाहिए था कोरिलेशन, हमने यूज़ कर दिया रिग्रेशन। तो ये भी कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो आकर होती हैं और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। Then there can be various other problems like misunderstanding between you and me. There can be various other difficulties. For example, when I'm sending the questionnaire, because of the daily life, the hectic schedule of the people, they're not responding, no response. Automatically आपकी स्टडी वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं, जो कि आज की डेट पे हो रहा होगा। आई गेस जितने भी बच्चे आज की डेट पे पीएचडी कर रहे होंगे या पीएचडी की डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे पीएचडी के लिए, तो वो लोगों को रिस्पॉन्सेज मिल ही नहीं रहे होंगे, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप डेटा कलेक्ट करवाते हैं इन्यूमरेटर से, जब आपके जो
इन्यूमरेटर है, इन्यूमरेटर कौन होते हैं, जो आपके बिहाफ पे डेटा कलेक्ट करने जाते हैं एक फील्ड पर, तो उस केस में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द इन्यूमरेटर्स आर अनट्रेन्ड देन द रिजल्ट्स विल नॉट बी पॉजिटिव. तो अगर आपने उनको भेजने से पहले ट्रेनिंग नहीं दी है कि वो कैसे काम करेंगे, तो आपके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो भी गलत ही आएंगे. तो उस तरह से भी जो एरर्स कंडक्ट होती हैं उसको भी हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बताए नॉन सैम्पलिंग एरर्स के. और सैम्पलिंग एरर का तो खैर एक ही रीज़न होता है, इनएडिक्वेट साइज. सो अगर आपको ये समझ आया हो कि सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो प्लीज़ share and subscribe the channel. Thank you so much.